K is the brother of Y. Y is the wife of Z. And Z is the son of W. Series चल रही है like. And W is the wife of V. How is V related to Y? Relationship between V and Y. What should be the relation between them? Hello viewers, what's up? Hope you all are doing very well. Welcome to Dhriti Sang Sikho channel, your own channel Dhriti Sang Sikho. Yes, alright, Dhriti Sang Sikho. We are doing logical reasoning on this channel. Our topic is blood relation. Part 1 we already done. Now we are doing part 2. Questions of part 2 I already uploaded on my channel Dhriti Sang Sikho. You can go there and answer the question and comment me in the Dhriti Sang Sikho. Yes, comment box में comment करो and take 4 marks for every right answer. Yes, 4 marks. You will get +4 right. Yes. This is the part 4 answers. Yes, answers of part 4. Let's start these questions. Let's start it. Okay, K is the brother of Y. Means K and Y both are brothers. ठीक है, we can see that. Okay, Y is the wife of Z, right? मीन्स हमें ये तो पता चल गया Y का ब्रदर कौन है, K. ठीक है. एंड व्हाट दे आर टेलिंग नेक्स्ट, Y इज द वाइफ ऑफ Z. Y कौन है? अब ये वाइफ है किसकी? Z की, राइट. यहाँ पे हम Z कर देते हैं. Z की वाइफ है Y. ठीक है, वाईफाई. यस, शी इज द वाइफ. Without wife, no life, like that. Okay. Z की वाइफ है Y. Z is the son of W. अब ये Z जो है वो W का बेटा है. ये W का बेटा कौन है? Z. He is the son. Right? Z is the son of W and W is the wife of Y. अब जो ये V, अब जो ये V है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं. W का बेटा, W का क्या? V और W का बेटा है Z. Z की वाइफ है Y और Y का भाई है K. ठीक है, तो हाउ इज V रिलेटेड टू Y? ठीक है, तो अब हमें क्या रिलेशन समझ में आ रहा है? V एंड W हस्बैंड वाइफ हैं, उनका बेटा है Z, सन है ना, हमने अभी किया इस पर. ठीक है, और ऐसे ही Z की वाइफ है Y. अभी हमें सिर्फ इसका पता होना चाहिए क्योंकि हमारा मेन क्या है पर्पस? V और Y का. Y का ब्रदर K है, डजंट मीन दैट ऑल, क्योंकि उसका K का कहीं और सीन नहीं है. सिर्फ सेंटेंस को आई थिंक स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वी कैन से दैट कि बच्चों को ट्विस्टिंग के लिए इस टाइप के लाइंस डाल देते हैं. ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं हाउ इज V रिलेटेड टू Y. V रिलेटेड टू Y, V के बेटे की वाइफ है. बेटे की वाइफ क्या? तो V कौन लगे? Y के. अरे फादर इन लॉ लगे, ससुर लगे. यस. अच्छा, अब आपके जो दादू दादी हैं उनका बेटा है Z. आपके दादू हैं V, दादी मम्मा है W, उनका बेटा है Z. दोनों का बेटा मीन्स आपके पापा. और आपकी जो मम्मा है अब उनका आपके दादू के साथ कौन सा रिलेशन है? दैट इज फादर इन लॉ. एग्जैक्टली, यस. That is the relation between V and Y as the question में हमें बोला गया है. How is V related to Y? Same thing is asking ना. I think that is very clear to all of you.
But still, if you have any kind of query, you can ask me through comment box. Comment me in the comment box. I will definitely answer you for every question, any question and every question, if you have any kind of query. Shall we go to the next question? Okay, let's go to the next question. See what they are going to ask in that question. Okay, here that is. Look at here. I am brother of Sunil. Okay, and मीना, both of course. सुनील एंड मीना मीन्स ये दोनों भाई बहन हैं, तीनों। ये इसका भाई और ये बहन है ऑफ कोर्स। ठीक है, जो समझ में आ रहा है इसमें। मिस्टर राकेश इज़ माय फादर्स फादर। जो मिस्टर राकेश है वो मेरे फादर के फादर है। हाउ इज़ मीना रिलेटेड टू मिस्टर राकेश? अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसको डायग्राम से ड्रॉ कर दें, जैसे कि मैं अब इसको डायग्राम में ड्रॉ करने वाली हूँ। जैसे ही मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगी आपको एज इट इज़ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इनकी फादर हैं मिस्टर राकेश, एंड हियर दैट इज, एंड हियर माई सेल्फ father, and of course father of Sunil and Meena also, because these three are brother and sister na. Look at here, I am brother of Sunil and Meena. ठीक है, myself ये रहा, and Sunil and Meena, ये दोनों हम तीनों यहाँ आ गए। My father's father is my grandfather Mr. Rakesh. Meena is my sister. So जो मेरी सिस्टर है, सो माई ग्रैंड फादर इज आल्सो मीनाज ग्रैंड फादर। सो मीना इज़ दी ग्रैंड डॉटर ऑफ, मीना का रिलेशन बताना है अब तभी ग्रैंड डॉटर वाला ऑप्शन दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे ग्रैंड फादर वाला ऑप्शन भी दिया हो सकता है, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब क्या बताना है, हाउ इज़ मीना रिलेटेड टू मिस्टर राकेश बताना है। मिस्टर राकेश का रिलेशन नहीं बताना है, वो तो दादू ही हैं, बट ये कौन है, शी इज़ अ पोती। Yes, she is a granddaughter, of course. फिर से देख लेते हैं। My father's father is my grandfather, and so Mr. Rakesh, Mr. Rakesh grandfather, जो Mr. Rakesh हैं वो मेरे फादर के फादर हैं, वो मेरे ग्रैंडफादर हुए। एंड मीना इज़ माई सिस्टर, सो माई ग्रैंडफादर इज़ आल्सो मीनाज ग्रैंडफादर, देयरफॉर मीना इज़ ग्रैंड डॉटर of Mr. Rakesh. Yes, this one we represented it by this diagram. मीना की ग्रैंडफादर, इवन ये सुनील के भी ग्रैंडफादर हैं, ऑफकोर्स हम तीनों के ही ग्रैंडफादर है मिस्टर राकेश। यस, लुक एट हियर, ये मिस्टर राकेश है इन तीनों के ही, माई सेल्फ भी और ये भी, इनके भी ग्रैंडफादर कौन है, मिस्टर राकेश। और डायग्राम के थ्रू कितना क्लियर हो गया। लुक एट हियर, मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम क्लियर सा दिखा देती हूँ। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डायग्राम से तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। बहुत ईजी था, फटाक से हो गया सेकेंड स्विंग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ दैट? ओके, रामू इज़ माई फादर्स रियल ब्रदर। जो रामू है, ठीक है, जो रामू है मेरे फादर का रियल ब्रदर, मीन्स मेरे अंकल हैं, मीन्स चाचू। जानवी इज़ माई ग्रैंड मदर, बड़ा अच्छा नाम है जानवी, ग्रैंड मदर का, आपको दादी का नेम जानवी, नाइस नेम। हाउ इज़ रामू रिलेटेड टू जानवी? अब रामू का क्या रिलेशन हुआ? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो कमेंट बनता है राइट नाउ बॉक्स में, ये कमेंट बॉक्स में एक कमेंट तो बनता है। अरे बहुत इजी है, नहीं समझ में आया 2 मिनट पॉज करो, दोबारा से रीड करो। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू हम एक बार कर लेते हैं। जैसे कि अब इसमें बोला गया है, रामू इज़ माई ग्रैंड फादर्स रियल ब्रदर। रामू कौन है? कौन है? माई फादर्स रियल ब्रदर, मेरे फादर के रियल ब्रदर। ठीक है, अगर इसको मैं कह दूँ ये ब्रदर है रियल, ठीक है। और
जानवी कौन है? जान इधर का है ना, नेक्स्ट स्लाइड में वैसे वैसे करते जाओ जैसे जैसे बोला है। जानवी इज़ माई ग्रैंड मदर। जानवी कौन है? मेरी GM, ग्रैंड मॉम। यस, GM, ग्रैंड मदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? हाउ इज़ रामू रिलेटेड टू जानवी? दे आर आस्किंग द सेम थिंग ना। माई फादर्स ब्रदर इज़ माई अंकल रामू, एज यू कैन सी हियर। रामू इज़ माई अंकल, सो माई रियल अंकल इज़, ये दोनों कौन हुए? भाई हुए। इज सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, ये कौन हुआ? सन ही तो हुआ। जानवी के दो बेटे हुए ना, एक मेरे फादर और एक ये मिस्टर रामू। आई थिंक ये बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं होना चाहिए? माई फादर्स रियल ब्रदर इज़ माई अंकल रामू, सो माई रियल अंकल इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड मदर। वो भी सन हुए, ये भी सन हुआ और ये भी सन हुए। ठीक है, दोनों ही सन हुए, दोनों बेटे हुए ना, दोनों भाई जो हैं, भाई है ना, इसीलिए ये दोनों बेटे हुए। तो वो जैसे ये बेटा हुआ वैसे ये भी बेटा हुआ। अभी रामू का रिलेशन पूछा गया ना, रामू का रिलेशन जानवी से, जानवी का नहीं पूछा गया। पूछा भी जाता तो मदर का तो ऑप्शन है ही नहीं तो ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक वी हैव टू गो, but if you have any kind of query, any kind of comment, any kind of question in your mind, or if you are not clear on any step of that question, इसीलिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ताकि आपको 1% की दिक्कत नहीं आए। अगर नहीं दिक्कत आ रही है थम्स अप तो बनता है बॉस, और आ रही है तो कमेंट बनता है येस, एज़ यू फील कंफर्ट। कि मीन्स अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट डालिए, ये थम्स अप डालिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और इन्जॉय कीजिए। यस, इसके क्वेश्चन मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ, क्वेश्चन अगर आपको चाहिए शेयर करने के लिए तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। यस, चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से इनको ले सकते हो क्वेश्चंस को, और यहाँ पे आपको विद आंसर्स भी अवेलेबल है। यस, so let's go to the next question. What is that? Here that is that question. Look at here. Let's read it now. It is B is daughter of A's wife's mother's only son. Little bit confusing है, वो भी सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। यस, सिर्फ इतना कंफ्यूजिंग है और इसी में ही आंसर है। क्वेश्चन भी इतना ही है एक्चुअल में क्वेश्चन भी इतना है, आंसर भी इसी में ही मिलेगा हमें, और यही लिटल सा कंफ्यूजिंग है। अदरवाइज़ कोई और कुछ नहीं पूछा गया, कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ एक ये चीज़ बताई गई है जिसका एंड में हमें काम है। पहले हमें ये बताना है ये क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद पहले देखते हैं पूछा क्या गया है। बी इज़ डॉटर ऑफ इज़ वाइफ्स मदर्स ओनली सन, ठीक है, बी डॉटर है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड ई और बी के बीच का रिलेशनशिप बताना है। क्वेश्चन तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं। अब हमें करना है इसको सॉल्व, और अगर आप कर चुके हो सॉल्व तो कमेंट डाल दो बस, ठीक है। चलिए हम करते हैं। बी इज़ डॉटर ऑफ ई इज़ वाइफ। बी कौन है? डॉटर है। ई इज़ वाइफ। मैं बहुत क्लियर करके समझाना चाहती हूँ ताकि कमेंट में थम्स अप आए, क्वेश्चन नहीं आए तो दैट इज़ ओके, क्लियर, बट स्टिल हम क्वेश्चन करते हैं पहले। बी इज़ डॉटर ऑफ ई इज़ वाइफ। ए की वाइफ मीन्स आपके पापा की वाइफ कौन लगी? आपकी मम्मा। आपकी मम्मा की मम्मा, आपकी नानी मम्मा। नानी मम्मा का ओनली बेटा आपके मामू, उनकी बेटी है बी, ठीक है। अब बी किसकी बेटी है? बी है बेटी किसकी? पहले लेते हैं हम इनको यहाँ पे। अच्छा, इसमें ना डायग्राम बहुत सिंपल सा है। कैसे? ए की वाइफ की मदर, ए की वाइफ की मदर ये रही, और इसका ओनली बेटा ये रहा, ओनली सन, ठीक है। उसकी बेटी है ये बी, उसकी बेटी है बी, डॉटर।
एक मिनट, ठीक है, ये मैंने डॉटर कर दिया, ये डॉटर लगी इसकी, किसकी, तो अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड ए। अब बी और ए के बीच में रिलेशनशिप बताना है, ठीक है, ये वाला हमसे पूछा गया है। ए की वाइफ का जो इससे रिलेशन है वही ए का इससे रिलेशन है, क्योंकि ए की वाइफ और ये दोनों भाई बहन लगे, क्योंकि दोनों की मदर हुई ना, ये ए की वाइफ की मदर है और उसका भी बेटा ये है, तो ये बेटा है, भी बेटी है, दोनों भाई बहन हुए, ये ए की वाइफ और ये। तो अब इसकी बेटी है बी, ठीक है, तो ए की वाइफ कौन लगी, बुआ, यस, वो लगी बुआ, आपकी बुआ होंगी, यस वही बुआ, वो लगी बुआ, ठीक है, यानी कि ये नीज हुई, तो वही ए की नीज हुई, वही ए की नीज हुई, वही ए की वाइफ की नीज हुई। अरे नीज वाला तो वैसे भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, नीज एंड अंकल, ये बुआ और फूफू, ये फूफू और फूफड़ जी, फूफू और कौन लगे, नीज भतीजी लगी, यस, नीज एंड अंकल वाला रिलेशन हुआ। आई थिंक बिल्कुल क्लियर है ये, मीन्स जल्दी जल्दी में समझाने से अच्छा है आराम से समझ में आ जाए। देखो, ए की वाइफ की मदर, ए की वाइफ की मदर है ये, और उसका ओनली बेटा है ये, एक बेटा था एक बेटी थी, दो बेटियां भी हो सकती है, बट अभी ए की वाइफ तो ये इसके बारे में भी पूछा गया सिर्फ, ठीक है, और अब ये दोनों हुए भाई बहन, तो इसकी बेटी बी है, तो इन दोनों का आपस में क्या लिंक हुआ, जो वाइफ का होगा वही हस्बैंड का होता है ना, ऐसे ही होता है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लियर टू यू, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, प्लीज़ go to the कमेंट बॉक्स एंड कमेंट मी राइट नाउ, कमेंट करो, अगर आपको समझ में आ गए तो भी प्लीज़ कमेंट करो, नहीं समझ में आया है देन प्लीज़ अगेन आपको मैं बोलूँगी कमेंट करो, एंड आप अदरवाइज़ पूछो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेरी है, अदरवाइज़ थम्स अप दो, ये दैट इज़ क्लियर टू मी। Thank you so much for watching. Subscribe my channel, like it, share with your friends, and please do comment on the channel of Dhriti Sangsikho and keep watching this channel. Yes, आप इस चैनल पे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस ब्लड रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलने वाला है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग धृति संगसिको चैनल। हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे फॉर ओलंपियाड एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑल्सो, और एग्ज़ाम्स के लिए भी हम मिलेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। सो कीप वॉचिंग धृति संगसिको चैनल एंड वी विल मीट सून।